નમસ્કાર, નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત ટુ ધ પોઈન્ટ કાર્યક્રમ સાથે હું છું યજ્ઞ ત્રિવેદી। દર્શક મિત્રો, આજે ટુ ધ પોઈન્ટ કાર્યક્રમમાં ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે ભક્ત ભક્તિ અને ભજનનો અનોખો સંગમ એટલે કે મહાકુંભને લઈને। જી હા, દર 12 વર્ષે દરેક લોકો રાહ જોતા હોય છે કે આ વખતે મહાકુંભનું આયોજન કેવી રીતે કરવામાં આવશે, શું કરવામાં આવશે, આ વખતે નવું ત્યાં શું જોવા મળશે અને વિશ્વનો સૌથી મોટો ધાર્મિક મેળો જેને મહાકુંભ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તે ઉત્તર પ્રદેશના પ્રયાગરાજમાં જે અત્યારે હાલ તડામાર તૈયારીઓ પણ જે ચાલી રહી છે। દર 12 વર્ષે આ જે મહાકુંભનું આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે ત્યારે આ વખતે પણ 13મી જાન્યુઆરીથી લઈને 26મી ફેબ્રુઆરી સુધી એટલે કુલ 45 દિવસ સુધી આ મહાકુંભનું જે સ્નાન ચાલશે અને તેમાં પણ લાખો સંતો મહંતો સેંકડો સંપ્રદાય અને તેની સાથે સાથે અનેક એવા અખાડાઓ પણ આ મહાકુંભના એક ભાગ બનશે તેવી બાબત પણ સામે આવી છે। એમ કહેવાય કે અત્યારે હાલ તો સિદ્ધ પુરુષો સાથે સાથે સિદ્ધ મહંતો પણ અત્યારે હાલ તો ત્યાં પહોંચ્યા છે આ મહાકુંભનું એક સ્નાનને અત્યારે હાલ તો જે મેળવવા માટે આ આશીર્વાદ મેળવવા માટે। તેમાં પણ એમ કહી શકાય કે જ્યારે મહાકુંભની વાત કરીએ ને તો મહાકુંભનું જ્યારે આયોજનની બાબત સામે આવતી હોય છે, જ્યારે એમ કહેવામાં આવે છે કે અત્યારે હાલ તો મહાકુંભનું આયોજન થવાનું છે, દરેક લોકોએ અત્યારે હાલ તો પોતાની યથાશક્તિ અત્યારે હાલ તો ત્યાં પહોંચવાનું છે અને જે પહોંચવાની જે બાબત જ્યારે સામે આવતી ત્યારે ચોક્કસથી ઘણી અઘરી પણ હોય છે। એમ કે ના દરેક લોકો વિચારતા હોય છે કે ના કુંભ પૂરા તો કરવા છે પણ કુંભ પૂર્ણ કરવા એ પણ બહુ અઘરા જોવા મળતા હોય છે। તમામ બાબતો પર ચર્ચા વિચારણા કરીશું। કેવા પ્રકારનો માહોલ છે, કેવી પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ છે, શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, કેવી રીતે અત્યારે તો ધ્યાન રાખવું જોઈએ, તમામ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે બાલેન્દ્ર દ્વિવેદીજી કે જેઓ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના પ્રચારક છે, સાથે સાથે કરણસિંહ રાઠોડ કે જેઓ ટૂર ઓપરેટર છે જે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। જ્યાં બંનેનું સૌથી પહેલા તો સ્વાગત છે। जी बालेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है निर्माण न्यूज में। जिस तरीके से अगर हम महाकुंभ की बात करें तो वहाँ पे अभी किस तरीके का माहौल है अभी वहाँ पे? माहौल मैं आपको अवगत करा दूं कि लमसम 95% कार्य महाकुंभ का पूरा हो चुका है और अनुमानित जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक अनुमानित संख्या है लमसम 40 करोड़ की पूरे इस विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक पर्व पर 40 करोड़ की संख्या आने वाली है। उस हिसाब से उन्होंने एक भव्य दिव्य व्यवस्था की है जो यहाँ पर आकर के विश्व के सभी स्नार्थियों को आकर के देखने के लिए मिलेगी। चाहे वो पार्किंग की हो, चाहे वो स्नान घाट की हो, चाहे वो सड़कों पर हो, चाहे वो सुरक्षा की हो, चाहे वो यात्रियों के रुकने की व्यवस्था हो, हर प्रकार की उत्तम व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई हुई है ताकि स्नार्थी दर्शनार्थियों को एक भी प्रकार की समस्या का या त्रुटि का सामना ना करना पड़े। जी बालेंद्र जी, वहाँ पे अभी माहौल कैसा है? सब लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि अगर हम महाकुंभ की बात करें तो 12 साल में एक बार होता है, अभी वहाँ का माहौल कैसा है? एक माहौल उत्साहित इस प्रकार से है कि हम तो प्रयागवासी हैं और हम सभी ये देख रहे हैं लमसम की माघ मेला हर वर्ष आता है परंतु यह 12 वर्ष पर कुंभ है और एक उत्साह ऐसा हम सभी के बीच में मन में ऐसा उत्साह आया है कि पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि प्रयाग की एक एक गलियां सुंदर चित्र से और आध्यात्मिक चित्रणों से भरी पड़ी हैं। खासकर मैं उत्तर प्रदेश और भारत की सभी जनता में उत्साह है, परंतु मैं उत्तर प्रदेश का जो एक जिला है प्रयागराज जहां पर इस उत्सव की तैयारियां चल रही हैं, वहां पर वहां की जनता के अंदर एक अपूर्व उत्साह है लोगों के अंदर देखने का। आप अभी स्नान तैयार नहीं हुआ है फिर भी आपको लाखों लोग इस मेले में अभी भी घूमते और टहलते मिल जाएंगे। एक उत्साह की ऐसी दृश्यता आपको देखने को मिलेगी।
બિલકુલ સહી છે. જે રીતે આમ કહેવાય ને કે દરેક લોકોમાં એક ઉત્સાહ છે, દરેક લોકોમાં એક આશા અપેક્ષા છે કે ના મહાકુંભનું સ્નાન અત્યારે તો કરવું છે. દરેક લોકો ત્યાં પહોંચે પણ છે, એટલે ચોક્કસથી એક એમ કહે ને કે ભક્તિમય માહોલ અત્યારે તો જોવા મળી રહ્યો છે. કરણસિંહજી, જ્યારે અહીંયાથી દરેક લોકો મહાકુંભ માટે જતા હોય છે પ્રયાગરાજ માટે, તો સૌથી પહેલાં તો કેવા પ્રકારની ત્યાં વ્યવસ્થાઓ ગોઠવવામાં આવી છે અને અહીંયાથી જતા લોકો માટે કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું એ બહુ જરૂરી જોવા મળતું હોય છે? અહીંથી જે પ્રવાસીઓ જતા હોય છે તે પોતાનો પ્રવાસ દરમિયાન ત્યાં કઈ તારીખે સ્નાન કરવું જોઈએ એની બહુ ચિંતા હોય છે. પ્રવાસીઓ વિચારતા હોય છે કે સ્નાન દરમિયાન ઓછી તકલીફ ક્યારે પડે, તો એ તારીખો નિશ્ચિત થઈ જાય અને એ પ્રજાને જો મેસેજ મળતો હોય તો વધારે ધ્યાનમાં આવે. પ્રવાસ દરમિયાન ત્યાં આગળ ઠંડી કયા પ્રકારની હોઈ શકે એની માહિતી મળે અને કયા પ્રકારના કપડા અહીંથી આપણે પહેરવા જોઈએ ને લઈ જવા જોઈએ એની માહિતી મળે, એ પણ પ્રવાસીઓ માટે જરૂરી છે. સાથે સાથે ત્યાં ગયા પછી ત્યાં કયા પ્રકારની જમવાની વ્યવસ્થા છે, તો કયા પ્રકારનું ભોજન કરવું જોઈએ એની પણ જો માહિતી મળે તો વધારે સારું. અને કરણસિંહજી, જ્યારે અહીંયાથી જવાનું હોય ત્યારે પ્રાથમિકતા શું અત્યારે તો રાખવી જોઈએ દરેક લોકોએ કે દરેક શ્રદ્ધાળુઓએ? અહીંથી આપણે જઈએ ત્યારે એક તો દરેકે પોતાનું મેડિકલ ચેકઅપ કરાવી લેવું જોઈએ. અને ઠંડીની બહુ જ ઋતુ છે, ઠંડી વધારે છે, તો ઠંડીને અનુકૂળ પોતાના કપડા, દવાઓ લઈ લેવી જોઈએ. અને મહાકુંભનો એરિયા બહુ મોટો છે, તો જે લોકો ચાલી શકે છે એવા લોકોએ જવું છે. જેમને પગમાં ચાલવાની બહુ તકલીફ ઓછી છે એવા પ્રવાસીઓએ આ પ્રવાસ टाळવો જોઈએ. अच्छी बात है. जिस तरीके से अगर हम महाकुंभ की बात करें तो बालेंद्र जी, वहाँ पे कैसी व्यवस्थाएं अभी कर दी गई है? क्योंकि 13 तारीख से महाकुंभ शुरू होगा, 45 दिन तक चलेगा. वहाँ पे व्यवस्थाएं कैसी है अभी? व्यवस्थाओं से आपको अवगत कराऊं कि जगह जगह पर यात्रियों के लिए रुकने के लिए यात्री निवास, रैन बसेरा, ये निःशुल्क सरकार की तरफ से है. शौचालय की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, स्थायी अस्थायी हॉस्पिटल, जगह जगह पर चौराहों पर अलाव की व्यवस्था. उसके साथ में कुछ जगहों पर एक ये अन्य क्षेत्र है, प्रयाग एक अन्य क्षेत्र के रूप में माना जाता है, तो यहाँ पर आपको भोजन की असुविधा किसी भी प्रकार से नहीं होगी. सरकार की तरफ से है, यहाँ पर साधु संतों की तरफ से भोजन की व्यवस्था रहती है. उसके तरफ से अन्य अन्य जगहों पर यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय व्यक्ति हैं, वो भी भंडारे की व्यवस्था रहती है. इसलिए अन्य क्षेत्र का एक जो आपको प्रारूप देखने को मिलेगा. उसके साथ में जगह जगह पर सरकार ने जो मोबाइल शौचालय आते हैं वो लगा करके रखे हैं, और साथ में एक गाइडलाइंस के तौर पर हर जगह आपको पूछताछ केंद्र के रूप में मिलेगा, जो आपको प्रयाग में किसी भी प्रकार की किसी भी स्थान पर पहुंचने में असुविधा ना हो, ऐसा एक सुविधा ऐप करके सरकार ने ऐप निकाला है, जिसमें लमसम 14 भाषाओं में आपको हर प्रकार की जानकारी, प्रयाग से जुड़ी जानकारी दी जाएगी. क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर कुंभ को बसाया जाना, 30 सेक्टर में कुंभ बसा हुआ है, तो स्नान करने वाले यात्रियों को आने और जाने में सुविधाएं ना हो, इसलिए आने का मार्ग अलग है और वापसी का मार्ग अलग है. ऐसी सारी सुविधाएं सरकार ने बना करके रखा है. साथ में शहर के जो धर्मशाला है कुछ वो भी इंगित किया है सरकार ने. यहाँ के स्थानीय लोग प्राइवेट तौर पर भी रहने के लिए उनके भोजन पानी उनका भी एक अपना ऐसा अलग व्यवस्था करके रखे हैं. और सरकार की जो समुचित व्यवस्था है उसको देख करके एक प्रसन्नता होती है मन में कि अगर 40 करोड़ की जगह 50 करोड़ भी संख्या आएगी तो उनको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी.
जी बिल्कुल। और बालेंद्र जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो सब लोग वहाँ पे आएंगे, देश की नहीं मगर हम विश्व की बात करें तो विश्व से सब लोग वहाँ पे आएंगे। अगर कोई वहाँ पे कोई खो गया या फिर उनको पता नहीं चला कि नहीं यहाँ से जाना है, यहाँ पे ये सब कुछ व्यवस्था है, तो उसके लिए क्या वहाँ पे सब साइन बोर्ड और वो सब कुछ लगाए हुए हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, आपकी बातों से ध्यान में आया कि कुंभ मेला, प्रयागराज का यह कुंभ मेला खोने के लिए, खो जाने के लिए लोगों के लिए प्रसिद्ध है। परंतु सरकार की एक व्यवस्था है कि प्रत्येक सेक्टर में वॉचिंग टावर बनाया है। वॉचिंग टावर के नीचे ही उन्होंने, सरकार ने एक सुविधा पॉइंट बनाया हुआ है, जहां पर अगर कोई व्यक्ति खो जाए या किसी अन्य सेक्टर में जाना हो या किसी भी प्रकार की जानकारी होगी, तो प्रशासन, पीआरडी और अन्य प्रशासनिक व्यक्ति बैठे रहते हैं, वो आपको सारी हर एक प्रकार की जानकारी देंगे। और अगर कोई व्यक्ति खो गया है तो उसके लिए एक सरकार का खोया पाया केंद्र बनता है प्रयागराज में, काली सड़क पर। प्रत्येक वर्ष वह काली सड़क पर ही स्थित होता है, इस वर्ष भी काली सड़क पर है। वहां पर आप खोए हुए व्यक्ति की जानकारी लिखवाते हैं, तो जो पूरे साउंड कंपनी पूरे माघ मेले में है, वहां से जानकारी दी जाती है और प्रशासन का व्यक्ति आपके व्यक्ति को ढूंढ कर ले आकर के आपके यथास्थान तक पहुंचाएगा। ऐसी व्यवस्था है सरकार की यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। કરણસિંહ जी, જે પ્રમાણે અહીંયાથી જો કોઈ શ્રદ્ધાળુ પ્રયાગરાજ તરફ અત્યારે તો આગળ વધતા હોય, કઈ કઈ વસ્તુઓ જોડે રાખવી પણ ત્યાં જરૂરી જોવા મળતી હોય છે? તો ત્યાં પોતાની મેડિકલ દવાઓ જે હોય એ જોડે રાખવી જોઈએ। સાથે સાથે ઠંડીના કારણે કપડા જે છે ઠંડી માટે રક્ષણ માટે એ પ્રકારના કપડા હોવા જોઈએ। ત્યાં જ્યાં પછી સ્વચ્છતાનું વધારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ। પ્લાસ્ટિક ચીજોનો વસ્તુનો ઉપયોગ ઓછો થાય એ પ્રમાણે દરેક યાત્રાળુએ પૂરતો પ્રયોગ કરવો જોઈએ, જેથી પ્લાસ્ટિકના કારણે ત્યાં જે ગંદકી અને જે સ્વચ્છતા નથી રહેતી એમાં આપણને દરેક સહયોગ ત્યાં મળે એ પ્રકારનો પણ આપણે વિચાર કરવો જોઈએ। ત્યાં એક તો જે વ્યવસ્થાઓ છે એનો સંપૂર્ણપણે અભ્યાસ કરવો જોઈએ, જે કે સૂચનાઓ બોર્ડ લખેલા હોય એ પ્રમાણે આપણે યાત્રાળુએ ત્યાં આગળ વર્તન કરવું જોઈએ, જેથી કરીને ત્યાંની વ્યવસ્થામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ ન ઉભો થાય। બિલકુલ। અને કરણસિંહજી, જ્યારે કોઈ શ્રદ્ધાળુ ત્યાં પહોંચી જાય અને ત્યાં અત્યારે તો કોઈ એવી વ્યવસ્થા અત્યારે તો ન થઈ રહેવાની કે રીતે, તો તેમણે અત્યારે તો ખાસ કેવા પ્રકારનું ત્યાં ધ્યાન રાખવું જોઈએ? એક તો પોતાની જોડે આધાર કાર્ડ સંપૂર્ણપણે હોવું જોઈએ, જેથી આપણે ધ્યાનમાં આવે। અને ત્યાં ધર્મશાળાઓ પુષ્કળ પ્રમાણમાં છે। 50 એક ધર્મશાળા ત્યાં છે, જે બહુ જ સસ્તા ભાવે ત્યાં દરેકને રહેવા નિવાસની વ્યવસ્થા હોય છે। અને એનું આયોજન થયેલું છે। 50 ધર્મશાળાના આખા બોર્ડ પણ લગાવેલા છે, નામોનું વ્યવસ્થા પણ કરેલી છે। અને કરણસિંહજી, તમે અત્યારે ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારની વ્યવસ્થા ગોઠવી છે તમારા તરફથી? ના, અમારા તરફથી કોઈ વ્યવસ્થા નહીં, પણ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસંઘ દ્વારા એક વ્યવસ્થા ગોઠવી છે, એક થાળી એક થેલી। એટલે અચ્છા, દરેક યાત્રાળુ આવે એને એક થાળી અને એક થેલી આપવામાં આવશે। बराबर है जी। बालेंद्र जी, जिस तरीके से अगर कोई श्रद्धालु कोई भी अगर राज्य की बात करें, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या कोई भी राज्य से निकल रहा है, और उनको कौन कौन सी चीज़ें अभी ध्यान में रखनी चाहिए वहाँ पे महाकुंभ में आने के लिए, और साथ में प्राथमिकताएं क्या क्या होनी चाहिए? पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि ये गंगा मैया के गोद में मेला लगता है, इसलिए ठंड बहुत ज्यादा है। आज लमसम 3 या 4 दिनों बाद सूर्य भगवान की रोशनी यहाँ पर लोगों को देखने को मिली है, इसलिए ठंड से बचने के लिए लोगों को अपने हिसाब से कपड़े, अपने वस्त्र लेकर के आने चाहिए। दूसरी, आपके पास आपका स्वयं का आधार कार्ड जरूर होना चाहिए। आप मेले में आ रहे हैं तो आपको आधार कार्ड होना चाहिए। आप मेले में पहुंच रहे हैं उससे पहले आपके पास आपके रुकने की व्यवस्था, और आप यात्रा कैसे होगी आपकी, आपका स्नान कैसा होगा, यह सारी अगर आपके पास व्यक्ति है तो जानकारी होनी चाहिए। या आप प्रशासन के माध्यम से अगर आपको जानकारी होती है तो प्रशासन के माध्यम से, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक सुविधा ऐप लॉन्च किया है, उससे सारी प्रकार की जानकारी है सरकार की तरफ से।
परंतु फिर भी हमें स्वयं को ध्यान में रखना चाहिए। जैसा भाई साहब की मैं क्या गुजरात की ये इनकी भाषा में समझ नहीं पा रहा हूँ, फिर भी एक थाली एक थैले का इन्होंने जिक्र किया तो मुझे ध्यान में आया, जो संघ का वो चल रहा है, संघ का एक वो है कि एक थाली एक थैला आप लेकर के आए, ना तो गंदगी हो और ना ही भोजन के लिए पात्र की आपको ढूंढने की वो हो। इसी प्रकार से मैं आपने जैसा बताया ना कि क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, जो सरकार ने यहाँ पर जानकारियां दी हुई हैं कि आपको किधर जाना है, कहाँ जाना है। मैंने आपको बताया 30 सेक्टर में बसा हुआ है ये, 25 सेक्टर बने हैं और 5 सेक्टर ऐसे हैं जिनका जिक्र नहीं है, वो सरकार के उस पर रखे गए हैं। साथ में आप ठंड से जो बचने के लिए कपड़े ले आ रहे हैं, उसके सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि आपके रुकने की व्यवस्था। आप आएंगे तो अगर स्नान पर्व पर आ रहे हैं तो आपको कम से कम 5 से 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ेगी, हो सकता है अधिक करनी पड़ जाए। इसलिए आप अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड करके आइए कि कम से कम आपको त्रिवेणी स्नान के लिए 5 से 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आप जाएंगे। साथ में आपके रुकने की समुचित व्यवस्था, बिस्तर की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर आपके साथ में बच्चे, छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इतना बड़ा मेला है, अगर एक बार भी आपसे तनिक चूक हो गई तो हो सकता है गंगा मैया न करे अनर्थ हो जाएगा। बच्चा अगर आपका गुम गया तो इतने बड़े मेले में आपके लिए ढूंढना संभव नहीं होगा। प्रशासन की इतनी व्यवस्था होने के बावजूद भी त्रिवेदी जी, मैं आपको बता दूं, लाखों लोग खो जाते हैं यहाँ पर, हर वर्ष की बात बता रहा हूँ। इसलिए बाहर से आने वाले यात्रियों को इस चीज का विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपके साथ में छोटे बच्चे हैं तो उनकी सुरक्षा का और उनकी सतर्कता का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। साथ में जिस तरीके से हम रहने की बात करें यार, स्नान का समय कौन सा है, स्नान के लिए जगह अभी कौन सी है, वहाँ पे अभी सब श्रद्धालुओं को क्या क्या प्राथमिकता रखनी चाहिए वहाँ पे भी पहुँच के? 13 घाट बनाए हैं सरकार ने यहाँ पर, दशाश्वमेध घाट, त्रिवेणी के और भी घाट, 13 घाट ऐसा सरकार ने बनाया हुआ है। परंतु मैं आपको पहले भी मेंशन किया कि अगर आप स्नान पर्व जैसा 3 शाही स्नान है और ऐसे मुख्य स्नान 4 स्नान है, एक जो इन्होंने महाशिवरात्रि का भी स्नान बनाया है, तो इन स्नानों पर अत्यधिक, हमारी सोच से भी अधिक भीड़ होने वाली है। 6 किलोमीटर से अधिक भी आपको पैदल चलना पड़ेगा। और अगर आप मुख्य त्रिवेणी के पास पहुंच करके स्नान करना चाहते हैं तो ये मैं आपको बता दूं कि वहां पहुंचते पहुंचते इतनी भीड़ हो जाएगी कि आपको स्वयं को ध्यान रखना पड़ेगा अपनी सुरक्षा का, कि आप वहां सुरक्षित स्नान करके चले आए। इसलिए बाहर से आने वाले लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि आप अगर यहाँ आकर के स्नान करना चाहते हैं मुख्य पर्व के दिन, तो आप भोर के समय ही उठ करके आप जहां पर घाट बनाए हैं सरकार ने, वहां पर आप अगर भोर में पहुंच जाएं तो आपका स्नान बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आप चाहेंगे कि हम 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे के समय पर पहुंचकर स्नान करने, तो असंभव हो जाएगा। आप त्रिवेणी नहीं पहुंच पाएंगे, आपको अन्य घाटों पर ही मोड़ दिया जाएगा, आपको वहां स्नान करना पड़ेगा। एक त्रिवेणी का जो महत्व है, वो त्रिवेणी का महत्व ये है कि जहां पर तीनों नदियों का संगम होता है, गंगा यमुना का संगम होता है और सरस्वती मैया अलोप है वहां पर, उसी को त्रिवेणी कहा जाता है। वहां पर अगर आप पहुंच सकते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त जो 3:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक का होता है, वहां पर पहुंच करके आपको स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर आप स्नान करेंगे तो आपके लिए असुविधा हो जाएगी, सुरक्षा की दृष्टि से भी सरकार आपको इधर से उधर मोड़ देगी, आपको अन्य घाटों पर पहुंचा देगी, आप त्रिवेणी नहीं पहुंच पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, બહુ સાચી વાત છે કે જ્યારે જે બાલેન્દ્રજી દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે અત્યારે હાલ
કોઈ પણ બાબત હોય તેમાં પ્રાથમિકતા અત્યારે તો રાખવી બહુ જરૂરી છે, આધાર કાર્ડ સાથે રાખવો બહુ જરૂરી છે, અને જો અત્યારે તમારે ત્રિવેણી સંગમ ઉપર જો સ્નાન કરવું હોય તો તેમાં પણ અત્યારે તો જે ટાઈમ ટુ ટાઈમ અત્યારે પહોંચવું બહુ જરૂરી છે, કારણ કે જે પ્રમાણે સુરક્ષાના કારણોસર પણ ક્યાંક તમને અન્ય કોઈ જગ્યાએ અત્યારે તો ડાયવર્ટ કરી શકે તેવી બાબત પણ સામે આવતી હોય છે. કરણસિંહજી, જ્યારે વ્યક્તિ ત્યાં પહોંચે છે, સ્નાન કરે છે, અને ત્યારે પણ જે દરેક પ્રકારનું અત્યારે આયોજન તો ચલો કરી લેવામાં આવતું હોય છે, પરંતુ અત્યારે અહીંયાથી જતા દરેક શ્રદ્ધાળુઓને આપ દ્વારા એક શું મેસેજ આપવા માંગશો કે અત્યારે તો શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, ત્યાં જઈને શું કરવું જોઈએ, પરત ફરતી વખતે પણ શું કરવું જોઈએ? 144 વર્ષ પછી આ મહાકુંભ આવે છે, જેથી કરીને અત્યારે દુનિયાની અંદર જે લોકો જીવી રહ્યા છે એના માટે આ મહત્વનો એક જ લાભ છે. જીવનમાં ફરી આવો મહાકુંભ જોવા માટે મળવાનો નથી. એટલે દરેક વ્યક્તિએ આ મહાકુંભ જોવા જવું જોઈએ અને પવિત્ર સ્નાન કરવું જોઈએ. જતા અને આવતા ટ્રેન, બસ, લક્ઝરી અથવા પ્રાઇવેટ સાધનોની જ્યારે પ્રવાસ દરમિયાન ખૂબ શાંતિથી અને સંયમપૂર્વક વાહનમાં જવું જોઈએ અને વાહનમાંથી પરત આવવું જોઈએ. વિશેષ કરીને જે નિવાસ છે એ નિવાસ વ્યવસ્થા પહેલાથી ઘણા બધા ટેન્ટો, સંતો માનતો પોતાના ટેન્ટો ખોલીને બેઠા છે, આશ્રમો ખોલીને બેઠા છે ત્યાં આગળ, તો એમના ત્યાં ટેલિફોનિક સંપર્ક કરીને અને ત્યાં રોકાવાની વ્યવસ્થાનો પણ વિચાર એક દરેક યાત્રાળુએ કરી લેવો જોઈએ. बिल्कुल बिल्कुल। बालेंद्र जी, एक आखिर में एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जिस तरीके से 13 तारीख से ये महाकुंभ शुरू होगा, 45 दिन तक चलेगा, उस टाइम पे माहौल कैसा होता है? चारों तरफ श्रद्धालु, चारों तरफ भीड़, चारों तरफ श्रद्धालु, चारों तरफ भीड़ आपको देखने को मिलेगी। प्रयाग शहर से लेकर के गंगा मैया के तट तक आपको केवल नरमुंड दिखाई देंगे। और मैं आपको बता दूं, यह जाति विशेष कोई मेला नहीं होता है, एक हिंदू धर्म का बहुत बड़ा धार्मिक पर्व है। तो आपको यहाँ पर चारों तरफ केवल और केवल हिंदू देखने को मिलेगा, सनातनी देखने को मिलेगा। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष से एक आग्रह है कि 144 वर्षों पर यह कुंभ आता है, और यह जो दिव्य भव्य सुरक्षित कुंभ आया हुआ है, इसको हमको देखना चाहिए। हमको हमारे आने वाले पूर्वज को बता सके, ऐसी हमारे संतानों को भी यह मेला जरूर दिखाना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और आप यहाँ पर क्या है कि बसें, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि लमसम मेला क्षेत्र से 20 किलोमीटर दूरी पर ही शहर के बाहर में इन्होंने जो पार्किंग स्थल बना दिया है। तो वहां पर स्नान पर्व के एक दिन पहले से स्नान पर्व के एक दिन बाद तक, जैसे 13 तारीख को आप आएंगे तो आपको 12 तारीख से सभी प्रकार के वाहन मेला क्षेत्र में प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे, चलना बंद हो जाएगा। वह 15 तारीख तक बंद रहेंगे, एक भी प्रकार के वाहन अलाउ नहीं है, वह मेला क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे, यह प्रतिबंधित है। कुछ शटल बसों को लमसम 520 शटल सरकारी बसें चलाई है सरकार ने, जो आपको आपके जहां पर पार्किंग स्थल बना है वहां से आपको मेला क्षेत्र तक पहुंचा देगी। फिर भी मेला क्षेत्र इतना बड़ा है कि आपको लमसम 10 से 12 किलोमीटर पैदल यात्रा करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक लास्ट एंड फाइनल, आप सब लोगों को एक मैसेज क्या दोगे द्विवेदी जी? बिल्कुल, मैं स्वयं, पूरा संघ विचार परिवार और पूरा प्रयाग, भारत के आने वाले कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं का हृदय से स्वागत करता है। आप आए ताकि यह 144 वर्षों बाद जो कुंभ लग रहा है उसको देख करके हमारे मन, जैसा मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं प्रयाग का वासी हूं, भारत में पैदा हुआ और प्रयाग में पैदा हुआ, वैसा ही आप सभी गौरवान्वित हो। इसलिए इस कुंभ में जरूर से जरूर आए, लोगों को आए, बताएं और यहाँ की व्यवस्था देखें कि एक सुशासित व्यवस्था, एक सुशासन व्यवस्था कैसे संचालित की जा सकती है। इतने विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को लोगों को बताना चाहिए। मैं स्वयं, मेरे जैसे तमाम प्रयाग के लोग व्यवस्था किए हैं, मैं स्वयं लोगों के रुकने की व्यवस्था, लोगों को दर्शन की व्यवस्था, लोगों को स्नान की व्यवस्था करा रहा हूं।
ऐसे ही पूरा प्रयाग इस व्यवस्था में जुटा हुआ है। हम अगवानी करने बैठे हैं, हम पूरे भारत का पलक बिछा करके बैठे हैं। इसलिए आप सभी से इस चैनल के माध्यम से आग्रह है कि एक बार आएं और यहाँ पर त्रिवेणी में गंगा मैया की डुबकी जरूर लगाएं। तमाम देश के कोने कोने से आए हुए अलौकिक परलौकिक संतों के दर्शन करें, जिनके दर्शन मात्र से ही कष्ट कट जाते हैं। आपको जरूर आना चाहिए और ऐसे संतों को, ऐसे संत जो आपको दिखेंगे नहीं, एक नागा साधु हैं जो आपको केवल इसी कुंभ में आकर के दिखेंगे, उसके बाद वो कहीं नहीं दिखेंगे आपको। तो ऐसे कुंभ का हम सभी को दर्शन करना चाहिए। एक अवसर प्राप्त है और उस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए, जरूर आना चाहिए। बिल्कुल। आपके चैनल के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहूंगा। जी द्विवेदी जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। કરણસિંહજી આપનો પણ આભાર અમારી સાથે જોડાવા માટે। તો દર્શક મિત્રો, મહાકુંભનું આયોજન થઈ ગયું છે। ભક્ત ભક્તિ અને ભજનનો એક અનોખો સંગમ અત્યારે તો જોવા મળી રહ્યો છે। મહાકુંભમાં દરેક લોકો અત્યારે તો જાઓ, કારણ કે એમ કહેવાય ને કે 144 વર્ષ બાદ આ મહાકુંભનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને તે પણ પ્રયાગરાજમાં જાઓ, કારણ કે એમ કે એક પવિત્ર સ્નાનનો લાહવો લેવો પણ એક બહુ જરૂરી છે, પણ તેની સાથે સાથે અમુક સાવચેતી પણ રાખવી બહુ જરૂરી છે, સાવધાની પણ રાખવી બહુ જરૂરી છે। અને સાવચેતી અને સાવધાનીની સાથે આપ સૌ મહાકુંભનું સ્નાન કરો તેવી આશા અને અપેક્ષા। તેની સાથે જ આજના ટુ ધ પોઈન્ટ કાર્યક્રમમાં રજા આપશો। નમસ્કાર।